Assalamu alaikum, dear students. Today I will be discussing about voice of the verb. So, voice can be of two forms, either in the active voice or passive voice. So, let's try to understand what this is all about. So, we have two sentences with us. Dog killed a snake. This is in the active voice, and the next sentence is a snake was killed by dog. This is in the passive voice. So, what's the difference? बोथ सेंटेंसेस एक्सप्रेस द सेम थिंग. अगर आप इसके माने पे गौर करेंगे, डॉग किल्ड ए स्नेक, कुत्ते ने सांप को मारा. ए स्नेक वॉज किल्ड बाय डॉग, सांप को कुत्ते ने मारा. बस को और ने का फ़र्क है, माने बिल्कुल सेम है. जैसे हम वो उर्दू मुहावरा कहते हैं, चाकू तरबूजे पे गिरे या तरबूजा चाकू पे गिरे, तो कटना तो तरबूजे को ही है. So it's same thing like that. Dog killed a snake. A snake was killed by dog. Meaning same है. Then what's the difference? So let us try to understand it in detail. Dog killed a snake. In this sentence, this dog, this is the subject, and snake. So snake is the object, and similarly this killed is the verb. So these are the three things. Dog killed a snake. Dog is the subject because it performs the action, and killed, it's a verb, it's the actual action. Snake, this is the object because action takes place on that. So in this sentence, subject, that means dog, is the doer. Doer means performs the action. So this dog performs the action. It killed a snake. So so in this case, when subject is the doer, when subject performs the action, we can say that verb is said to be in active voice. When subject performs the action, or it's the doer, we can say it's in the active voice. The verb is in the active voice. So in the next sentence, we have a snake was killed by dog. You can see in this sentence, a snake, subject, dog, it's an object. A snake, अगर आप इस पे देखेंगे तो a snake was killed by dog. इस वक्त सांप पर काम हो रहा है. सांप काम नहीं कर रहा है, बल्कि सांप पर काम हो रहा है. So we can simply say that in this sentence, snake is the subject, and dog is the object. तो होता क्या है इस सेंटेंस में कि स्नेक काम नहीं करता है, डॉग काम करता है. तो यहाँ डॉग स्नेक पर काम करता था ऐसा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इसका उल्टा है, स्नेक पर काम हो रहा है. सो snake receives the action. So we can simply say that subject snake, it receives the action. It receives the action, or simply it's acted upon. तो हम कह सकते हैं verb is said to be in passive voice. Verb is said to be in passive voice. तो ये डिफरेंस है इन सेंटेंस में. पहले सेंटेंस में डॉग किल्ड अ स्नेक, डॉग काम करता है, it performs the action, so we can say verb is said to be in active voice. In the next sentence, a snake was killed by dog. Snake पर काम हो रहा है, so it receives the action, it is acted upon, so we can say this verb, it's in the passive voice. That's the concept. So let's move forward. Now we have which verbs can be changed into passive form. This is a very important thing because we have to see it. हमें ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस पैसिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा और कौन सा सेंटेंस पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं होता है. किसी वक्त जब हम एग्जामिनेशन में किसी सेंटेंस पर फंस जाते हैं तो हम पहले ये गौर ही नहीं करते हैं कि ये सेंटेंस कन्वर्ट हो भी जाएगा कि नहीं हो जाएगा. पहले हमें क्लियरली ये चीज़ें पता होनी चाहिए. सो सेंटेंसेस विद ट्रांजिटिव वर्ब्स, sentences, so this is what we have to understand properly. Sentences with transitive verbs can be changed into passive voice. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. Only sentences with transitive verbs can be changed into passive voice. तो ये हमें देखना है. Now what are transitive and intransitive verbs? ये चीज़ ज़रूरी समझनी है. जब तक आप ये चीज़ नहीं समझेंगे what is transitive and intransitive verbs, तो तब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा. जैसे आप एग्जाम्पल के लिए हमें सेंटेंस है, आसान सेंटेंस है हमारे पास, शी डस्टेड द चेयर. शी डस्टेड द चेयर. तो इस सेंटेंस में आप देखिए, शी इज़ द सब्जेक्ट, डस्टेड द चेयर, कुर्सी को साफ किया है इसने. शी परफॉर्म्स द एक्शन, यहाँ सब्जेक्ट है ये. सो आप देखिए
डस्टेड द एक्शन। तो डस्ट ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है? बिकॉज वर्ब के फौरन बाद यानी डस्टेड के फौरन बाद आप देखते हैं द चेयर ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो दैट्स वाई वी व्हेन वी चेंज इट, तो हम क्या लिखते हैं? द चेयर वॉज डस्टेड, द चेयर वॉज डस्टेड बाय हर। तो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, और डस्टेड को मैंने वाज डस्टेड में चेंज किया है क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है जिस वर्ब के फौरन बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। लेकिन आप दूसरे सेंटेंस में देखिए, इसकी डेफिनेशन पहले आप अच्छी तरह समझ लीजिए। वर्ब्स फॉलोड बाय नाउन्स और नाउन फ्रेजेस, जैसे डस्टेड के बाद द चेयर, डस्टेड वर्ब है, इसके फौरन बाद है द चेयर, सो इट्स ए नाउन या आप नाउन फ्रेज कहिए जिसको हम ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दैट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और हु। तो ये टिप है समझने के लिए। जैसे अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन इस तरह करूं, शी डस्टेड व्हाट, शी डस्टेड व्हाट, व्हाट का आंसर क्या है? द चेयर। शी डस्टेड व्हाट, शी डस्टेड द चेयर। तो अगर आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर होता है। इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और हु। So such are called transitive verbs. So I will repeat this again. Verbs that are followed by nouns, so which जो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं एंड दे आंसर द क्वेश्चन व्हाट आर हु, लाइक शी डस्टेड द चेयर, डस्टेड के फौरन बाद द चेयर ऑब्जेक्ट, नाउन या नाउन फ्रेज। तो फिर दूसरी चीज है शी सैट ऑन द चेयर, शी सब्जेक्ट, ऑन द चेयर, आप देखिए ऑन द चेयर, तो इसके फौरन बाद क्या आता है? ऑन। तो शी सैट ऑन द चेयर, तो यहाँ क्या है? वर्ब्स दैट डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आफ्टर देम, तो इसमें डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आफ्टर देम, इनके फौरन बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। शी सैट ऑन द चेयर एंड यूजुअली आंसर द क्वेश्चन वेयर, तो ऊपर मैंने कहा था इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और हु, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि इट आंसर द क्वेश्चन वेयर। फॉर एग्जाम्पल, शी सैट ऑन द चेयर, सैट वेयर, where did she sit, where did she sit, it answers the question where, she sat on the chair. This is called intransitive verb because verb is not followed by a direct object, it's not followed by a direct object। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको समझने में आसानी होगी। बट ये पॉइंट आप बिल्कुल अच्छी तरह याद रखिए। Sentences with transitive verbs can be changed into passive voice. Only transitive verbs, not intransitive. So if there is any sentence that has intransitive verb in it, it cannot be changed into passive voice. Note it down. So we have the next thing. How to change active voice into passive voice. Now we have to understand the rule very clearly. So now we have the example. Father loves son. Father subject, father subject, son object, loves इसमें verb है, it's in the active voice because subject performs the action. Father loves son, subject performs the action, subject performs the action, it's in the active voice. So in the second example, son is loved by father, son, it receives the action by father, so it's in the passive voice, it's in the passive voice. So what change have we undertaken while changing direct speech, while changing active voice into passive voice? So when we change active voice into passive voice, so what do we mostly do? We have to concentrate on certain important things. First, the object of the transitive verb, that is to be noted very clearly, the object of the transitive verb. So this is transitive verb, the object is son, the object of the transitive verb in the active voice becomes the subject of the passive voice. तो ये object son जो है, जब हम इसको passive voice में change करते हैं, it becomes the subject. So in the active voice it was the object, now when we changed into passive voice it becomes the subject. So ये पहला काम है कि हम the object in the active voice changed into subject in the passive voice, पहला काम ये है। तो दूसरा काम ये है, द पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड विद सूटेबल टेंस। आप देखिए पहले में था फॉर द लव्स, तो लव्स प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो हमने जब इसको कन्वर्ट किया इज लव्ड, तो चेंज क्या करते हैं हम? द पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड विद सूटेबल टेंस, सूटेबल टेंस होना चाहिए ऑफ द वर्ब, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब और बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बी
बी जो है आपको पता है वर्ब बी जो है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। सो suitable form of बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। सो लव और loves इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है लाउड। सो हमने बी का इस्तेमाल किया है, बी की सूटेबल फॉर्म दैट इज सन इज लाउड बाय फादर। ये दूसरी चेंज है। तो तीसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो है नोटिस द प्रीपोजिशन बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। तो इस पैसिव वॉइस में आप देखिए इसमें जो बाय का इस्तेमाल हुआ है बिफोर द ऑब्जेक्ट, सन इज लाउड बाय फादर। यानी तीन चीजें हैं जिनको हमें जहन में रखना चाहिए, तब जाकर ये क्लियर। नंबर वन, द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। ये जो ट्रांजिटिव वर्ब में जो ऑब्जेक्ट है ये जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट बन जाता है, नंबर वन। नंबर सेकेंड, जो हम वर्ब यूज़ करते हैं तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब को, चेंज इनटू सूटेबल टेंस, लाउड चेंज इनटू इज लाउड, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ जो ये बाई जो है इसको हम बिफोर ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। लेकिन कब चेंज करते हैं? जब ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल हुआ हो। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल हुआ हो तो किसी भी सूरत में चेंज नहीं कर सकते हैं। नाउ आसान बनाने के लिए मैंने आपके लिए टेबल बना के रखा है। अगर आप इस पर ज़रा सा तवज्जो दे देंगे तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब कोई सेंटेंस होता है तो एक्टिव वॉइस में हम लिखते हैं टेक्स। तो ये जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं वहाँ हम लिखते हैं इज टेकन, आर टेकन, एम टेकन। तो ये होता है बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो टेक और टेक्स इट चेंज इनटू टेकन, लेकिन बी इसके साथ रहेगा। बी की सूटेबल फॉर्म आपको देखना पड़ेगा, सूटेबल क्या है, क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है तो उसमें आपको देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, क्या उसके लिए एम सूटेबल है, इज सूटेबल है, आर सूटेबल है। लेकिन ये जो वर्ब है ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है हर किसी सूरत में, हर जगह पे ऐसा ही होता है। बी जो है इसकी आपको सूटेबल फॉर्म देखनी पड़ेगी कि कौन सी सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी। इसी तरह से अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस में है तो वहाँ पे क्या होगा, एम इज आर प्लस इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यही स्टाइल है। तो जब हम इसको पास्ट में चेंज करते हैं ए एम इज आर तो ये वैसे हम इसी तरह से लिखेंगे। और बी प्लस थर्ड फॉर्म जो मैंने अभी कहा, बी जो हम एडिशनली यूज़ करते हैं बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसमें क्या है कि बी की अप्रोप्रिएट फॉर्म यहाँ आपने बीइंग लिखी है और दिस चेंज इनटू थर्ड फॉर्म टेक चेंज इनटू टेकन। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव, टेकन, सो इट चेंज इनटू हैज़ और हैव बीन टेकन। ये आप देखिए सिंपल पास्ट में टुक इट चेंज इनटू वाज और वर टेकन। ये आप देखेंगे सब्जेक्ट के साथ क्या एग्री करेगा। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस वाज और वर टेकिंग इट चेंज इनटू वाज बीइंग टेकन और वर बीइंग टेकन। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट हैड टेकन इट चेंज इनटू हैड बीन टेकन। सिंपल फ्यूचर विल टेक और शैल टेक चेंज इनटू विल बी टेकन और शैल बी टेकन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस will have taken, shall have taken, it changed into will have been taken। और इसी तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि मॉडल्स जो है कैन, मे, मस्ट और इसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब कैन बी, मे बी, मस्ट बी। सो इसको हम किस तरह से चेंज करते हैं ये भी हमें देखना होगा। तो हम लिखते हैं कैन बी टेकन, मस्ट बी टेकन, कैन टेक, मस्ट टेक चेंज इनटू कैन बी टेकन, मस्ट बी टेकन। तो अब आपके जो हमने ये रूल्स सारे पढ़े, अब आपके सामने एक्सरसाइज है, बिल्कुल आप कर सकते हैं ये जो रूल्स मैंने आपको बताए। पहले आपको ये देखना होगा कि चेंज कब होती है, जब ट्रांजिटिव वर्ब हो। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब इज द वर्ब दैट इज फॉलोड बाय अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इमीडिएटली आफ्टर दैट इज फॉलोड बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहली चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, अब अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर वन कि हम जो ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब एक्टिव वॉइस में जो है उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वो सब्जेक्ट बन जाता है। और दूसरा कि हम टेंस को किस तरह चेंज करते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब
जो आपको वर्ब इस्तेमाल हुआ है दैट विल चेंज टू थर्ड फॉर्म, और बी की सूटेबल फॉर्म भी आपको लगानी होगी। और तीसरी चीज़ कि हम कन्वर्ट करते वक्त पैसिव वॉइस में बिफोर ऑब्जेक्ट बाई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सेंटेंस एक एक करके देखिए। ही राइट्स नॉवेल्स, ही राइट्स नॉवेल्स, दो चीज़ें अहम होती हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ही इज़ द सब्जेक्ट, नॉवेल्स इज़ द ऑब्जेक्ट। ही राइट्स नॉवेल्स, तो अगर हम नॉवल को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, सो नॉवेल्स आर रिटन, novels write is changed into written because verb changed into third form, be plus third form। तो be की कौन सी appropriate form आएगी? novels are written। देखिए अगर आप लिखेंगे novels is written, that's not good। novels am written, that's not appropriate। so novels are written by him। so ये आपको याद रखना पड़ेगा, be plus थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आप याद रखिए, हर जगह यही इस्तेमाल होती है, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब जो है दैट चेंज इनटू, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कुकिंग है, इट विल चेंज इनटू कुक्ड, प्लेट्स विल चेंज इनटू प्लेट्स, स्कोल्डेड विल चेंज इनटू स्कोल्डेड, चेजिंग विल चेंज इनटू चेज्ड, वॉच्ड, इसी तरह से सबमिटेड, इसी तरह से बेक्ड, इसी तरह से अटैक्ड। तो ये वन टाइम याद रखिए, द मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब चेंज इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और सिर्फ आपको ये देखना है कि बी की कौन सी अप्रोप्रिएट फॉर्म आपको इस्तेमाल करनी है। नॉवेल्स आर रिटन बाय हिम, तो बी पार्ट में क्या है, तो इसमें है शी इज कुकिंग मील्स, शी इज द सब्जेक्ट, मील्स इज द ऑब्जेक्ट। तो अब आप मील्स को पहले लाइए, मील्स आर बीइंग कुक्ड बाय हर, मील्स आर बीइंग कुक्ड बाय हर। ये आप टेबल अच्छी तरह से फिर से चेक कीजिए और देखिए कि कैसे करना है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट को पहले लाइए। क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाई मी, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाई मी। इसी तरह से टीचर स्कोल्डेड द बॉय, तो द बॉय को पहले लाइए। द बॉय टीचर स्कोल्डेड द बॉय वॉज स्कोल्डेड बाई टीचर, द बॉय वॉज स्कोल्डेड बाई टीचर। इसी तरह से दूसरा पार्ट है cat was chasing a rat, rat को पहले लाइए। a rat was being chased by cat, a rat was being chased by cat। इसी तरह से अब पार्ट है we had watched a movie, we सब्जेक्ट है इसमें, movie ऑब्जेक्ट है, तो मूवी को पहले लाइए। a movie had been watched by us, a movie had been watched by us। स्टूडेंट्स विल सबमिट फी, स्टूडेंट्स इज द सब्जेक्ट, फी इज द ऑब्जेक्ट, तो आपको इसको लाइए, इनकी जगह आप रिप्लेस कीजिए। फी विल बी सबमिटेड बाय स्टूडेंट्स, फी विल बी सबमिटेड बाय स्टूडेंट्स। सो दे विल हैव बेक्ड केक्स, यहाँ आप देखिए, दे विल हैव बेक्ड केक्स, केक्स विल हैव बीन, केक्स विल हैव बीन बेक्ड बाय देम, केक्स विल हैव बीन बेक्ड बाय देम। सो इसी तरह से है criminals can attack him, so he can be attacked by criminals, he can be attacked by criminals। तो ये आपके सामने एक्सरसाइज है, इस पे आप और थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप फिर से जो मैंने टेबल बनाया है इस पे आप देखिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर चेंज होती है और किस तरह चेंज होती है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूरी याद रखने हैं वाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो वो क्या है, सम वर्ब्स हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इमीडिएटली आफ्टर देम, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे आप इस सेंटेंस पे देखते हैं आई वॉच्ड ए फिल्म, तो इसमें आई सब्जेक्ट है, तो इसमें जो आई है वो सब्जेक्ट है, और फिल्म जो है ये ऑब्जेक्ट है, और एंड वर्ब, ये जो वर्ब है वॉच्ड, इट्स दिस इज सब ऑब्जेक्ट इज इमीडिएटली फॉलोड, वर्ब इज इमीडिएटली फॉलोड बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें आई वॉच्ड, वर्ब जो है वॉच्ड, इसके फ़ौरन बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ए फिल्म। सो अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहिए तो हम लिख सकते हैं ए फिल्म वॉज वॉच्ड बाई मी, ए फिल्म वॉज वॉच्ड बाई मी। तो इस तरह का सेंटेंस जो है, सम वर्ब्स हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इमीडिएटली आफ्टर देम, दीज वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। ये आप नोट कर लीजिए, जो मैंने आपको बताया मैं एक्चुअली रिकैप्चुलेट ही कर रहा हूँ। तो दूसरी चीज़, सम वर्ब्स डू नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कहीं पर नहीं होता है, दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर। जैसे शी स्पोक वेल, शी सब्जेक्ट है, स्पोक वर्ब है, इसके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें, इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि इट शुड आंसर व्हाट एंड इट शुड आंसर हु। जैसे अगर आप देखेंगे आई वॉच्ड ए फिल्म, वॉच्ड व्हाट ए फिल्म, शी स्पोक वेल, स्पोक व्हाट, तो ये इसका आंसर नहीं है। हाउ का आंसर है, शी स्पोक वेल, हाउ डिड शी स्पीक, हाउ डिड शी स्पोक वेल। तो हाउ भी इसी में, हाउ भी इसी में आता है कि अगर कोई हाउ का आंसर हो, दैट्स ऑल्सो, दीज वर्ब्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स।
क्योंकि इसके फ़ौरन बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसी तरह से सम वर्ब्स कैन बी बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, लेकिन अगर आप सभी वर्ब्स के बारे में यही चीज़ याद रखेंगे कि कोई ट्रांजिटिव होता है कहीं इंट्रांजिटिव होता है, तो ये भी गलत है, बिकॉज देयर आर सम वर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड बोथ एज ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड एज वेल एज intransitive verbs. For example, we have wrote. We have this verb wrote. He wrote a letter. Clearly, he is the subject and letter, this is object. If you want to convert it in the passive voice, we can say a letter was written by him. A letter was written by him. यही write जो है, अगर हम इसको इस तरह यूज करेंगे, he writes regularly. He writes, तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं because it's an intransitive verb. So wrote has been used as transitive verb in the first sentence. In the next sentence, it has been used as intransitive verbs. There are a lot of verbs that can be used both as transitive verbs as well as an intransitive verbs. For example, sit, stand, come, go. So these words, they do not also take a direct object after them. So we have to keep in mind that only transitive verbs can change into passive form. Only transitive verbs can change into passive form. Intransitive verbs are not changed into passive form. That's what we should remember. Now, so I have just put some sentences before you. They are in comparison. You can yourself see the verbs are same, but every time you have to see, test your understanding. I have already written there in these sentences you can change them, but these are the sentences you cannot change. Why? So notice one thing, that verbs used in these sentences are same. For example, in this sentence, writes, writes, but you can change the first, but you cannot change the second. Why? You have to guess it yourself. He writes novels. Novels are written by him. Novels are written by you. You changed into passive voice, but he writes well. You cannot change it into passive voice. Why? Because this is intransitive verb. There is no direct object after the verb. So in this case, there is a direct object after the verb. So that's the reason. Similarly, in the second case, she speaks English. She speaks softly. She speaks English. English is spoken by her. English is spoken by her, but she speaks softly. It can't be changed into passive voice because there is no direct object. Similarly, we have another example. Roshan Lal teaches Hindi. He teaches in a school. Teaches. In both cases, teach is used, but Roshan Lal teaches Hindi. Hindi is taught by Roshan Lal. This can be changed into passive voice, but he teaches in a school. There is no direct object. It's in. Immediately after the verb there is in, so it's not a direct object. That's why we cannot change it into passive voice. They eat rice and fish. So this eat, we have also, they eat once a day. So compare these two sentences. They eat rice and fish. Rice and fish is eaten by them. Rice and fish is eaten by the rice and fish. Though when two singular subjects are connected by and, we have to use plural verb, but we have to use are. But rice and fish denotes the same thing. Rice and fish, garbat, it's one thing. So rice and fish is eaten by them, it's one thing. So they eat once a day. There is no direct object. It's once a day. It's not a direct object, so we cannot change it into passive voice. So similarly, we have another example. We enjoy games. Games are enjoyed by us. So there is a direct object, but we have been enjoying games. What's the problem in this sentence? Even after enjoying, there is, in both the cases, enjoy is followed by games. Here also, enjoy is followed by games. So we cannot change it into passive voice. What's the reason? Can you guess, please? Yes, it's in the present perfect continuous tense. So I have already explained that there are certain tenses that are not changed. So they are present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future continuous tense, and future perfect continuous tense. So it's in the present perfect continuous tense. That's why this tense does not change into passive voice. This is in addition to transitive and intransitive verb discussion. So there are some tenses also that do not change. Okay. So thank you. This was all about our change of voice discussion.
Now I hope that you might have understood it well. Please subscribe to my channel and help me reach as many students as you can, because the sole motive of my preparing these lectures that takes a lot of time. You can yourself imagine researching, writing, preparing slides, and then recording my voice, and doing all that takes a lot of time and energy, and it must be fruitful for the students actually. So I may request you to help me reach as many students as you can by any media that you find better. And if you have any queries and questions regarding this topic that I have discussed today, you can post any queries on my WhatsApp number that's given for your convenience. So I hope you take benefit from it, and make me aware about the shortcomings that creep in due to one or the other reason. So thank you very much once again.